بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی داستان کی قسط نمبر 59 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم کل جو ذکر کر رہے تھے اسود کا، اسی جگہ سے شروع کرتے ہیں۔ اسود نے اپنا دعویٰ نبوت کیا تھا اور لوگوں کو اپنے معجزے بھی دکھایا کرتا تھا۔ مثلا جلتی مشعل اپنے منہ میں ڈال لیا کرتا، اور جب مشعل اس کے منہ سے نکلتی تو وہ جل رہی ہوتی تھی۔ اس نے ایک لڑکی کو ہوا میں محرک کر کے بھی دکھایا۔ ایسے ہی چند اور شعبے تھے جو لوگوں کو دکھاتا تھا، اور لوگ انہیں معجزے کہتے تھے۔ ایک تو وہ چرب زبان تھا، دوسرے وہ خوش لحان تھا۔ اس کے بولنے کا انداز پرکشش تھا۔ اس نے یمن والوں کو یہ نعرہ دے کر کہ یمن والوں کا ہے، ان کے دل مول لیے تھے۔ یمنی بڑی لمبی مدت سے ایرانیوں کے زیر نگی چلے آ رہے تھے۔ ایرانی تسلط بازان کے قبول پر اسلام کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا، تو حجاز کے مسلمان آ گئے۔ اس کے علاوہ وہاں یہودی، نصرانی اور مجوسی بھی موجود تھے۔ یہ سب اسلام کے پنج خونی چاہتے تھے۔ انہوں نے اسود انسی کی نبوت کے قدم جمانے میں در پردہ بہت کام کیا۔ اسود اپنی نبوت کی صداقت ایک گدھے کے ذریعے ثابت کیا کرتا تھا۔ اس کے سامنے ایک گدھا لایا جاتا، وہ گدھے کو کہتا بیٹھ جا، گدھا بیٹھ جاتا، پھر کہتا میرے آگے جھک، گدھا سجدے کے انداز سے جھک دیتا۔ گدھے کے لیے اس کا تیسرا حکم ہوتا میرے آگے گھٹنے ٹیک دے، گدھا اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا۔ دیکھتے دیکھتے اسود انسی کو یمن کے لوگوں نے نبی مان لیا، اور اسود نے ان لوگوں کو ایک فوج کی صورت میں منظم کر لیا، اور اس نے سب سے پہلے نجران کا رخ کیا۔ وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے 2 مسلمان حاکم تھے، حضرت خالد بن ولید، حضرت بن سعد اور مرحوم بن حزم۔ اسود کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا۔ جو نجران میں داخل ہوا تو وہاں کے باشندے بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ دونوں مسلمان حاکموں کے لیے پسپائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسود انسی اس سے پہلے فتح سے سرشار ہو گیا، اور اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ ہوگی۔ اس نے نجران میں اپنی حکومت قائم کر کے صنعا کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں بازان کا بیٹا شہر حکمران تھا۔ اس کے پاس فوج تھوڑی تھی، پھر بھی وہ مقابلے میں ڈٹ گیا۔ اس کی للکار نے اپنی فوج کے قدم اکھڑنے نہ دیے، لیکن شہر بن بازان چونکہ اپنی فوج کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے سپاہیوں کو طرح لڑ رہا تھا، اس لیے شہید ہو گیا، اور اس سے اس کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اسود کے خلاف لڑنے والے وہ یمنی بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن شکست کی صورت میں جان کا خطرہ مسلمانوں کو تھا۔ انہیں اسود کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہونا تھا۔ اسود کسی مسلمان کو نہیں بخشتا تھا، چنانچہ مسلمان جانیں بچا کر نکل گئے اور مدینہ جا پہنچے۔ اسود انسی رحمان علمن کہلاتا تھا۔ حضر موت، بحرین اور اسا اور عدن تک کے تمام علاقوں پر بھی قبضہ کر کے تمام یمن کا بادشاہ بن گیا۔ اسلام کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ شمال کی طرف سے رومیوں کے حملے کا خطرہ اور وقت موجود رہتا تھا، ہر وقت موجود رہتا تھا۔ اس وقت کو ختم کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر رومیوں پر حملے کے لیے تیار کیا تھا، جس کے سلارے اللہ 22 سالہ نوجوان اسامہ رضی اللہ تعالیٰ تھے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ زید بن حارثہ بھی سلار تھے، اور وہ متاح کی مارکوں میں شہید ہو گئے تھے۔ یمن کو ایک خود ساختہ نبی سے نجات دلانے کے لیے بہت بڑے لشکر کی ضرورت تھی، لیکن لشکر رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ اگر رومیوں پر حملے ملتوی کر کے اس لشکر کو یمن بھیج دیا جاتا تو رومی یہ فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ مدینہ پر حملہ کر دیتے۔ یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صورت یہ سوچی کہ یمن میں جو مسلمان مجبوری کے تحت رہ گئے ہیں، وہ جنہوں نے اسود انسی کی اطاعت قبول کر لی ہے، انہیں اسود کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس طریقہ کار کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سالاروں نے پسند کیا۔
इस मकसद के लिए चंद ज़हीन किस्म के अफराद को यमन भेजा गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र इंतखाब कैस बिन हबीरा पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुलाकर यमन जाने का मकसद समझाया और पूरी तरह ज़हन नशीन कराया कि इन्हें अपने आप को छुपाकर वहां के मुसलमानों से मिलाना है और एक जमीन दोस्त जमात तैयार करनी है जो इस छोटे झूठे नबी और ऐशो इशरत में डूबे हुए खुद साख्ता बादशाह का तख्ता उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस बिन हबीरा से यह भी कहा कि वो मदीना से अपनी रवानगी को भी खुफिया रखें और यमन तक इस तरह पहुंचे कि इन्हें कोई ना देख सके। इस पर खतर महम को और ज्यादा मुस्तहकम करने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत देकर कहा कि यमन में कुछ मुसलमान सरदार मौजूद हैं जिन्होंने मजबूरी के तहत असूद की इताअत कर ली है। ये खत इन्हें पढ़वा कर ज़ाया कर देता और बाकी काम कैस बिन हबीरा करेंगे। असूद अनसी ने जब सना पर हमला किया था तो वहां के हाकम शहर बिन बजान ने मुकाबला किया, लेकिन वो शहीद हो गया था। इसकी जो इस जुआ साला बीवी जिसका नाम आजाद था असूद के हाथ चढ़ गई। आजाद गैर मामूली तौर पर हसीन ईरानी औरत थी। इसने असूद को कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन असूद ने इसे जबरन अपनी बीवी बना लिया था। आजाद अब इस शख्स की असीर थी जिससे वो इंतहा दर्जे की नफरत करते थे। अकेली औरत कर भी क्या सकती थी। इसकी खुश नसीबी सिर्फ इतनी थी कि असूद औरतों का दिल दादा था। इसने अपने हरम में 20 औरतें रखी हुई थी और इसे तोहफे में भी नौजवान लड़कियां मिला करती थी। वो हर वक्त औरत और शराब के नशे में बदमस्त रहता था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए कैस बिन हबीरा चोरी छुपे सफर करके भेस बदल कर सना पहुंचे। असूद ने सना को अपना दारा हुकूमत बना लिया था। इधर बरबन और एक मुसलमान सरदार के यहाँ खत लेकर पहुंच गए। इस मुसलमान सरदार ने ये यकीन तो दिला दिया कि वो ऐसे चंद एक मुसलमान सरदारों को इकट्ठा कर लेगा जिन्होंने दिल से असूद की अतात कबूल नहीं की, लेकिन असूद का तख्ता उठना मुमकिन नजर नहीं आता क्योंकि वो सिर्फ बादशाह नहीं, यमन के बाशिंदे इसे अपना नबी मानते हैं। कैस बिन हबीरा एक ऐसे ठिकाने पर पहुंच गए जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिदाई मुसलमान मौजूद थे। इन मुसलमानों ने भी वही बात कही जो मुसलमान सरदार ने कही थी, लेकिन इन मुसलमानों ने ऐसी कोई बात ना कही कि वो इस जमीन दोज तहरीक में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने पुरअज़म लहजे में कहा कि वो खुफिया तरीके से वफादार मुसलमानों को इकट्ठा कर लेंगे। हम इस झूठे नबी को खत्म करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। एक मुसलमान ने कहा, जो वक्त गुजरता जा रहा है इनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, क्या तुम लोग ये नहीं सोच सकते कि इस शख्स को कत्ल कर दिया जाए? कत्ल कौन करेगा? एक और मुसलमान ने पूछा। और इसे कहाँ कत्ल किया जाएगा? वो महल के बाहर निकलता ही नहीं। ये भी मालूम हुआ कि इसे महल के इर्द गिर्द मुहावजों का बड़ा सख्त पैरा होता है। क्या हम कोई ऐसा आदमी नहीं जो इस्लाम के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर दे? कत्ल का मशवरा देने वाले मुसलमान ने पूछा। इस तरह जान देने से क्या हासिल कि जिसे कत्ल करना है इस तक पहुंच ना सके? इस मुसलमान ने कहा, बहरहाल हमें खुफिया तरीके से यह तारीख चलानी है कि कम से कम मुसलमान बगावत के लिए तैयार हो जाए। असूद अनसी ने यमन पर कब्जा करके पहला काम यह किया था कि ईरान के शाही और दीगर आला खानदानों के जो ईरानी इसके हाथ चढ़ गए थे, इन्हें इसने मुख्तलिफ तरीकों से जलील और ख्वार करके रख दिया था। इनकी हालत और जेर खरीद गुलामों से बदतर कर दी गई थी। लेकिन असूद की हुकूमत में सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि इसके पास ना कोई तजर्बाकार सलार था, ना कोई कारोबार हुकूमत चलाने वाला काबिल एतमाद आदमी था। ये खतरा तो वो लम्हा हर वक्त महसूस करता था और मुसलमान इस पर हमला करेंगे वो खुद अस्करी ज़हन नहीं रखता था। इसकी कमी को पूरा करने के लिए ईरानियों का ही तआमुन हासिल करना पड़ा था। इसके सामने 3 नाम आए। इनमें एक ईरानी का नाम कैस बिन
यूज था, जो बाजान के वक्तों का माना हुआ सलार था। दूसरे दो हुकूमत चलाने में महारत रखते थे। एक था फिरोज और दूसरा जो था वो फिरोज इस्लाम कबूल कर चुका था। वो दूसरा जो ज़ुवैया, फिरोज ने इस्लाम कबूल कर लिया था और सही मानों में और सच्चे दिल से मुसलमान था। असूद ने कैस बिन अब्दुल अयूस को सलारे आला बना दिया और फिरोज और ज़ुवैया को वजीर मुकर्रर किया। तीनों ने असूद के वफादार का हल्फ उठाया और इसे यकीन दिलाया कि वो हर हालत में इसके वफादार होंगे। एक रोज फिरोज बाहर कहीं घूम रहा था कि एक गदागर ने इसका रास्ता रोक लिया और हाथ फैलाया तो मुझे मजूर नजर नहीं आता। फिरोज ने इसे कहा कि अगर तू मजूर है तो तेरी मजूरी यही है कि तुझ में गैरत और खुददारी नहीं। तूने ठीक पहचाना है। गदागर अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, मेरी मजूरी यही है कि मेरी गैरत मुझसे छीन गई है और मैं देख रहा हूं कि तेरी भी यही मजूरी है। मैंने भीख के लिए हाथ नहीं फैलाया, मैं अपनी गैरत वापस मांग रहा हूं। अगर तू पागल नहीं हो गया तो मुझे बता कि तेरे दिल में क्या है। फिरोज ने कहा गदागर से और पूछा, मेरे दिल में अल्लाह के इस रसूल का नाम है जिसका तू शदाई है। गदागर ने फिरोज की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर असूद अंसी की शराब तेरी रगों में चली नहीं गई तो मैं झूठ नहीं कह रहा कि तूने दिल पर पत्थर रखकर असूद की वजारत कबूल की है। फिरोज ने इधर उधर देखा और समझ गया कि ये मदीना का मुसलमान है, लेकिन इसे यह भी खतरा महसूस हुआ कि ये असूद का कोई मुखबर भी हो सकता है, इसलिए वो थोड़ा सा घबराया। फिरोज ने गदागर से कहा, मैं तुझ पर एतबार करता हूं, तू मुझ पर एतबार कर। मैं तुझको अपना नाम बता देता हूं, कैस बिन हिब्रा। मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। क्या तू सच कहते कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे मेरे पास भेजा? फिरोज ने इश्तियाक से पूछा। नहीं, कैस ने कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा था कि वहां चले जाओ, अल्लाह के सच्चे बंदे मिल जाएंगे। तुझे किसने बताया कि मैं सच्चा मुसलमान हूं? फिरोज ने पूछा। अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर रसालत के शैतानियों की आंखों में जो चमक पैदा होती है वो मैंने तेरी आंखों में देखी है। कैस ने कहा, तेरी आंखों में चमक कुछ ज्यादा ही आ गई है। फिरोज ने कैस से कहा कि वो चला जाए। इसने कैस को एक और जगह बताकर कहा कि कल सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले वो वहां बैठा गदागरी के सदा लगाता रहे और अगली शाम फिरोज इस जगह से गुजरा जो इसने कैस बिन हबीरा को बताई थी। फिरोज के इशारे पर कैस गदागरों के अंदाज से उठकर फिरोज के पीछे पीछे हाथ फैलाकर चल पड़ा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैगाम पहुंचा देना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जान कुर्बान करने वाला एक आदमी असूद अंसी के साए में बैठा है। फिरोज ने चलते चलते इधर उधर देखे बगैर धीमी सी आवाज में कहा, और मैं हैरान हूं कि इतनी जंगी कुव्वत ताकत के बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन पर हमला क्यों नहीं किया? हरकल का लश्कर उर्दन में हमारे सर पर खड़ा है। कैस ने कहा, हमारा लश्कर रूमियों पर हमला करने जा रहा है। क्या हम दो आदमी पूरे लश्कर का काम नहीं कर सकेंगे? क्या तूने ये सोचा कि दो आदमी क्या कर सकते हैं? फिरोज ने पूछा। कत्ल। कैस ने जवाब दिया और कहने लगा, मुझसे ना पूछना कि असूद को किस तरह कत्ल किया जा सकता है। क्या तूने अपने चचा की बेटी आजाद को दिल से उतार दिया है? फिरोज चलते चलते रुक गया। इसके चेहरे पर कुछ और ही तरह की रौनक आ गई, जैसे खून अचानक उबल पड़ा हो। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।